Good morning, students. Today we will be doing our poem She Walks in Beauty by Byron. इसका जो background है that I have discussed in the previous video, in the prior video which we made on the topic of romanticism and the romantic era. In that video we have discussed all the poets, all the factors which influenced romanticism, all the features of romanticism और poets जो भी थे, younger romantics, older romantics, वो सब हमने discuss किया and we have discussed Byron also. तो यहाँ पे we'll be starting with our poem She Walks in Beauty. This is a small poem written by Byron. It is a short poem of 3 stanzas with the rhyme scheme of A B A B A B. ये चलता है इसमें. Then the theme of this poem is basically जैसा कि name से ही clear हो रहा है, she walks in beauty. तो the poet here is describing the beauty of a woman. Generally it is considered to be a love poem, but it is not. It is totally not a love poem because the poet never says, throughout the poem, the poet never declares or never says that he is in love with that woman. He is just focusing upon describing the beauty of the woman, and he's using various figures of speech to describe her beauty. And in the beauty also, the theme of this poem is description of beauty, but not just the physical beauty. The poet here describes the beauty, physical beauty as well as the spiritual beauty, the total aura of a person. Aura means whatever your intellectual capacities are, whatever your behavior is, your temperament is, your nature is, all these things are included and then a person's aura is made. So basically the poet here focuses upon the description of physical as well as spiritual or intellectual or emotional beauty as well of the woman. Now the poem was written in the background of, as you all have understood till now, that individualism is a very important factor in the writings of romantic poets. तो यहाँ पे क्या है, द पोइट ही नेवर डिस्क्लोजेस थ्रू आउट द पोएम, वो कभी भी कोई लेडी का नाम नहीं लेता है दैट दिस पोएम इज़ रिटन टू हर, इज़ डेडिकेटेड टू हर, बट इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस पोएम this poet Byron has composed on the beauty of his cousins Robert Wilmot's wife, Mrs. Anne Wilmot. This poem is dedicated to her, and it is believed that Byron was so much fascinated, he became so much fascinated by her appearance and by her aura of the beauty, so he wrote this marvelous poem She Walks in Beauty. So beauty here is not just physical beauty but also the spiritual beauty and the total aura of the lady. Now moving towards the poem, the poet says, she walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies, and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies. Now here describing the beauty of the poem, the poet is comparing her beauty to that of a night, that also a particular night. While describing the beauty of the poet, of the lady, the poet says she walks in beauty. It is not like the ये जो phrase है she walks in beauty, इसका मतलब ये नहीं निकलता है कि एक beautiful woman जो है she is taking a walk, or a beautiful woman is walking, or she is walking very beautifully. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं निकलता है. It means that the woman is, beauty is something that she walks inside of. Beauty is something that she walks inside of. The meaning here is very ambiguous, unclear. Beauty is drawn to her or surrounds her.
because dark and bright light are drawn to the woman's appearance, and it could also mean that her beauty makes her around more beautiful, like an aura of beauty that surrounds her as she walks. The poet here says, here he basically means that a woman is she's very beautiful, she's inside and outside throughout very beautiful, and she is walking in the night, she walks in beauty, that is she takes a walk which is full of beautiful, everything around her, everything around encompassing whatever the things are around her is that becomes beautiful. And then he uses a simile and describes like how she is walking, like the night of cloudless climes and starry skies, and the night in which there is no very clear night, देर इज़ अ वेरी क्लियर नाइट, पूरी मतलब एकदम साफ जो रात है, कोई बादल वगैरह जो है वो रात में नहीं है, तो क्या है रात हमको एकदम क्या है बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, ठीक है, तारे टिमटिमाते हुए, स्टारी स्काइज का मतलब द स्काई इज़ फुल ऑफ स्टार्स, एंड क्लाउडलेस क्लाइम्स हियर मीन्स ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स मीन्स क्लाइमेट, तो द क्लाइमेट इज़ वेरी क्लियर and without any clouds, and the starry skies are shown, and in that beautiful atmosphere the woman is walking, the woman is taking a walk, and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes. Now the poet says that whatever beauty in the nature is, all that is best of dark and bright, everything that can be imagined which is beautiful in the which can be considered beautiful when it is dark or when it is bright. ये कब एनवायरनमेंट की ये बात कर रहा है, भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में दिन के समय की बात कर ले या बेस्ट ऑफ डार्क मतलब रात के समय की बात कर ले, एंड ब्राइट मीन्स दिन के समय की बात कर ले, जो भी ब्यूटीफुल है, जो भी अच्छी चीज़ हो सकती है, मीट इन हर एस्पेक्ट, वो सारी चीज़ें जो हैं वर्ल्ड की जितनी जो ब्यूटी है, चाहे वो दिन के समय की हो या रात के समय की हो, मीट हर, वो सब क्या हो जाती है इकट्ठे हो करके इन अ हार्मोनियस टोन, इट बिकम्स वन एंड गोज टू इन हर एस्पेक्ट एंड हर आईज, एंड एस्पेक्ट मीन्स अपीयरेंस, ये जो वुमेन है इसकी अपीयरेंस के में आकर के जितनी जो सृष्टि की सुंदरता है वो मिल जाती है इसके अपीयरेंस में, जो अपीयरेंस इज़ नाउ मेड अप ऑफ मल्टीपल थिंग्स। एक आपका अपीयरेंस इज़ नॉट कि हाँ हम गोरे दिखते हैं या काले दिखते हैं, उस it does not mean appearance encompasses everything, your total aura, your total personality is encompassed in appearance। तो ये कह रहा है, कवि कहते हैं कि जितनी जो खूबसूरती है वो सब जा कर के क्या है इस वुमेन में जा कर के इकट्ठा हो जाती है, शी इज़ सो ब्यूटीफुल एंड ऑल दीज थिंग्स मेक्स हर मोर ब्यूटीफुल, एंड हर आईज़, और उसकी आईज़ जो है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि ऐसा लगता है कि दुनिया की जितनी जो चाहे दिन की खूबसूरती हो या रात की खूबसूरती एक हम इमेजिन कर सकते हैं वो उसमें जा कर के मिल जाती है। Thus mellowed to that tender light, अब mellowed here means pleasant, good natured, good temperament, ठीक है, to that tender light, tender means soft, which heaven to gaudy day denies, which heaven, अब heaven here means God, gaudy day, gaudy means showy, बहुत ज़्यादा शोई, बहुत ज़्यादा ग्लिटरी, डे डिनाइज, उसको नहीं देता है, मतलब उससे मना कर देता है उसको। नाउ इट इज़ इंटरनल मेटाफर, इसका मतलब है दस मेलोड टू दैट टेंडर लाइट विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइज, हेवन जो है दिन को, वो दिन जब बहुत ज़्यादा सूरज जो है वो अपनी चरम सीमा पे चमक रहा हो, बहुत तेज़ रोशनी हो, बहुत तेज़ रोशनी हो, तो उसके साथ बहुत तेज़ धूप भी होगी, ठीक है, अब ऑब्वियसली बादल आ जाएंगे तब तो रोशनी नहीं हो पाएगी ना, तो बहुत ज़्यादा धूप भी होगी, तो उसको
उस वक्त को, जब बहुत तेज़ रोशनी हो, उस वक्त को जो है भगवान वो सुंदरता नहीं देते हैं। वो और यहाँ ऐसा माना जा रहा है कि गॉडी डे, नाउ डे इज डे को यहाँ पे पर्सोनीफाई करके, दिन का टाइम को पर्सोनीफाई करके, और ये इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी शोई, कि वो क्या कर रहा है, अपने आप को अपना दिखावा कर रहा है कि मैं कितना चमकदार हूँ, मैं ये हूँ, इस चीज़ का वो दिखावा कर रहा है। लेकिन भगवान उसको हेवन हियर मीन्स गॉड, गॉड उसको वो सुंदरता जो है वो नहीं देते हैं। वो सुंदरता जो कि किसको मिलती है, टेंडर लाइट को, जब रोशनी बहुत ही सॉफ्ट हो करके आती है। अब यहाँ पे रात का जो एटमॉस्फेयर दिस पोइट हैज़ प्रेजेंटेड कि बहुत ही स्टारी स्काइज हैं, और मतलब चमक करके वो रोशनी जो धरती पर आ रही है, ऑब्वियसली दैट इज़ सॉफ्ट लाइट, तो उसकी सुंदरता जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, एंड दैट कैन नॉट बी इक्वेटेड विथ द गॉडी डे। उस सॉफ्ट लाइट की तुलना हम उससे गॉडी डे से नहीं कर सकते हैं, जबकि दिन बहुत ज़्यादा क्या हो, चमकदार हो और ये हो। नाउ मेटाफॉर, सिम्बॉलिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या है, इट मीन्स दैट द लेडी इज़ वेरी, एक तो वो ब्यूटीफुल अपने फिजिकली तो वो ब्यूटीफुल है ही, it also means that in her total personality also, in her total aura also, she's so beautiful, she's of so pleasant natured person, a very good temperamental person. Mellowed here means बहुत गुड टेम्परामेंट बहुत अच्छा हो, सोच बहुत अच्छी हो, सौम्य स्वभाव हो, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कि उनका इतना अच्छा स्वभाव है, टू दैट टेंडर लाइट, और ये जो सौम्यता है उनकी, ये उनको और भी ज़्यादा सुंदर बनाती है, जो कि भगवान विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइज। अब गॉडी डे को यहाँ पे हम उन लोगों से कंपेयर कर सकते हैं जो कि अपनी सुंदरता का क्या करते हैं, बखान करते हैं कि हाँ हम इतने ज़्यादा सुंदर हैं, और हमने, या फिर अपनी अचीवमेंट्स का भी या फिर बखान करते हैं कि हम इतने इंटेलिजेंट हैं, हमने ये चीज़ें कर ली, हमने वो कर लिया, या अपने पैसे का बखान करते हैं, है ना। शोईनेस, गॉडी मीन्स व्हाट, शोईनेस, दिखावा करना, किसी भी प्रकार का दिखावा करना। तो सिम्बॉलिकली द पॉइंट हियर मीन्स दीज थिंग्स, दैट द वुमेन इज फिजिकली शी इज सो ब्यूटिफुल दैट जो रात टिमटिमाते तारों भरी जो रात है, उससे हम इनकी तुलना कर सकते हैं, इनकी खूबसूरती की। और ये सारी जो खूबसूरती है दुनिया की, चाहे दिन की हो या रात की हो, वो आ कर के इनमें मिल जाती है, इनके अपीयरेंस में और इनकी आँखों में मिल जाती है। और फिर कवि ये कहते हैं कि इनका जो सौम्य स्वभाव है वो इनको और भी ज़्यादा सुंदर बनाता है, और वो सुंदरता जो कि भगवान शोइनेस को, उन लोगों को जो कि दिखावा करते हैं किसी भी प्रकार का, अपनी सुंदरता का हो या किसी और भी चीज़ का दिखावा करते हैं, उनको भगवान वो चीज़ नहीं देते हैं। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो यहाँ सिमिली है। नाउ एलिट्रेशन है, जैसे कि दिख रहा है क्लाउडलेस क्लाइम्स, स्टारी स्काइज, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स एलिट्रेशन है। देन थर्ड लाइन में अगर हम देखेंगे, एंड ऑल दैट इज बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट, डार्क अंधेरा, ब्राइट उजाला, दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, अपोजिट को एक ही जगह रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, एंटीथेसिस है, फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस, ठीक है। हेवन लास्ट इन द 6th लाइन इफ वी सी, विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइज, डे को पर्सोनिफाई किया है ये ऑब्वियसली, तो पर्सोनिफिकेशन है। हेवन हेयर इज यूज्ड, द वर्ड हेवन इज यूज्ड फॉर गॉड, गॉड की जगह क्या बोला गया है, हेवन बोला गया है। भगवान की जगह या फिर जो अपर एटमॉस्फेयर है उन चीज़ों की जगह क्या है, हेवन का प्रयोग किया गया है। जबकि हेवन का मतलब क्या होता है, जो अच्छे कर्म करते हैं वो हेवन में जाते हैं, एंड द रॉन्ग डूअर्स गो टू हेल। हेवन एंड हेल का कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। तो इस कारण क्या है, मिटोनमी, फिगर ऑफ स्पीचेस मिटोनमी। राइम स्कीम क्लियर है, ए बी चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर दिस, नेक्स्ट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो।